Good morning to all of you. I hope you all are fine at your home. Now, let us start with our part 5 of chapter 2. What is the name of our chapter second? That is tables in LibreOffice Base. Okay. Now, let us first revise what we have learned in part 4. We have learned about the data type, date and time data type. Okay. Date and time, and we have also learned about the time stamp and date stamp. I've given you an example. While you click a photograph, what happens? A time stamp get embedded onto that photograph which you used to click. Okay. Further, what we have learned about the other types of data type, that is yes and no, or you could say boolean value, that is 0 and 1. You are going to learn about it in the later classes. We have also learned about the binary, var binary and long var binary. These types are used for storing binary data like images. If you want to store images, you have to use these particular kind of data. Now, on third, we were learning about a description. You can enter the detailed description of all the field within the table. I have given you an example. आप जब डिज़ाइन व्यू में टेबल बनाते हैं तो आप किसी फील्ड के बारे में कैसे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. Now, after that, creating a new table in design view, I've told you the steps. Practical भी आपको करके दिखाया था. ठीक है. These are all the same things. Let us move further. Now, here we are going to cover here, we are going to learn how to set a primary key, in our LibreOffice base database. Okay, now let us read about setting a primary key. A primary key is a key that differentiates the record in a table. Okay, I will let you know it with an example. The data is stored in a key field contain data that is unique to the specific record. क्या होता है वो की जो होती है पर्टिकुलरली एक यूनिक इंफॉर्मेशन, यूनिक आइडेंटिटी होती है किसी भी डेटा की, आप कह सकते हो. In each new table you create, you will want to set one field as a primary key. अब वो field कोई भी हो सकती है. Fields आपको already बताया था मैंने क्या होती हैं field. I need not to give it example again, I think. Now, continuing further, base uses this key to relate this table record to those in another table. For example, a student record would use roll number as a key field because it uniquely identified each student. अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है एक स्टूडेंट का कि जैसे एक क्लास है, कोई भी क्लास ले लीजिए, एट पिंक ले लीजिए, पर्पल ले लीजिए. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उस क्लास में देर वुड बी सिमिलैरिटीज इन द नेम ऑफ टू और मोर स्टूडेंट्स. एक जैसे नेम के कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं. ठीक है. तो उन्हें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो रोल नंबर्स तो डिफरेंट होंगे ना, वन आफ्टर अनदर ही होंगे, लेकिन होंगे तो डिफरेंट, एंड दैट पर्टिकुलर student would be knowing its roll number, would be knowing their roll number ना. तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में स्टूडेंट के रोल नंबर को प्राइमरी की बना देंगे, और जब भी हमें डेटा एंटर करना होगा या चेंज करना होगा तो उस प्राइमरी की के थ्रू हम डेटा को चेंज करेंगे या फिर डेटा इनपुट करेंगे उस टेबल के अंदर. अब ऐसे एक बड़ा एग्जांपल ले लीजिए. क्या ले ले बड़ा एग्जांपल ले लीजिए पूरे स्कूल का. ठीक है. पर्टिकुलरली कोई इन्फॉर्मेशन आई कि एक बच्चा है, उसके बारे में कुछ रिकॉर्ड, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए. ठीक. उसका नेम पता है हमें. ओके. बट हमें क्या है, उसका क्लास सेक्शन नहीं पता है. So what we are going to do, we would be having a unique identity of that particular student. जैसे आप लोगों का एडमिशन नंबर होता है ना, वो एडमिशन नंबर कभी चेंज नहीं होता है. जब आप एडमिशन लेते हैं स्कूल में, उस टाइम पे वो यूनिकली आपको अलॉट हो जाता है. ठीक है. और वो हमेशा सेम रहेगा टिल यू पास आउट ऑफ द स्कूल. ठीक. तो उस एस आर नंबर को एज अ प्राइमरी की बना के हम ढूंढ सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन, वो कौन सी क्लास में है, उसकी पेरेंट्स इंफॉर्मेशन, उसका सेल फोन नंबर. ओके. उसका प्रीवियस रिकॉर्ड, रिजल्ट, हर चीज़. तो ये हो गया एक बड़े डेटाबेस के अकॉर्डिंग. नाउ, हाउ टू सेट अ प्राइमरी की. लेट अस रीड द स्टेप्स. नाउ, एज यू कैन सी इन द प्रेजेंटेशन, यहाँ पे
एक टेबल बनी हुई है डिज़ाइन व्यू में, फील्ड्स दे रखे हैं, फील्ड टाइप दे रखा है और उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ये वही फील्ड है जो हमने प्रीवियसली बनाई थी। अभी मैं आपको इस पे प्रैक्टिकल भी दूंगा। सिलेक्ट द फील्ड। अब इसमें से क्या होगा, आर यू एबल टू सी दैट पर्टिकुलर रेड एरो? रेड एरो आपको फर्स्ट फील्ड स्टूडेंट आईडी पे दिख रहा है। आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं उसके पर्टिकुलर एडजेसेंट जो ग्रे कलर का आइकन है, जो उस रो के एडजेसेंट आपको दिख रहा है, उसको सिलेक्ट करके आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको उसे प्राइमरी की सिलेक्ट करना है, यू आर गोइंग टू क्लिक ओवर देयर। ठीक है, एरो विल अपीयर ओवर देयर। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। नाउ नेक्स्ट, हम आएंगे उसी एरिया पे जहाँ पे वो एरो आ रहा होगा, वहीं पे राइट क्लिक करेंगे। जब हम राइट क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा उस फील्ड के अबव, जिस पे लिखा होगा कट, कॉपी, डिलीट, इंसर्ट रोज और प्राइमरी की सबसे लास्ट में। यू हैव टू क्लिक ओवर प्राइमरी की। जब आप प्राइमरी की के अबव क्लिक करेंगे, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट फील्ड will be set as the primary key in your particular table जो आपने create करी है। ठीक है, और उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, कौन सी फील्ड एज अ प्राइमरी की सेट हो गई है, एक की का साइन आपको डिपिक्ट होगा, दिखेगा अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर फील्ड। अगर आपको चेंज करना है, अगेन यू हैव टू सिलेक्ट एनी ऑफ द फील्ड बाय द सेम प्रोसेस, एंड अगेन you have to right click over there and set it as a primary key. Okay, now let us also understand how to save a table. Now for saving a table, what we are going to do, अब टेबल होता क्या है, टेबल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। जब हमने प्राइमरी की सिलेक्ट कर दी तो टेबल स्ट्रक्चर जो है पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप रहता है उस टेबल को डेटाबेस में सेव करना। तो उसे सेव करने से पहले हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई वो पर्टिकुलर टेबल किस पर्टिकुलर कंटेंट की है, तो आप उसको टेबल को नेम दोगे। वंस यू हैव सेव द टेबल, यू कैन कंटिन्यू वर्किंग ऑन द टेबल और क्लोज द विंडो। अब उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, नाउ आपने जहाँ पे जो डिज़ाइन व्यू आ रहा है, ऑन द वेरी लेफ्ट फर्स्ट पॉइंट पे देखिए एरो दिख रहा होगा, क्लिक ऑन द सेव बटन। द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर इन बिटवीन। ओके, हियर देयर वुड बी द टेबल नेम। यहाँ पे आपका ये टेबल नेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप बैक स्पेस दबा के जो भी नेम रहेगा, सॉरी, जो भी नेम रहेगा उसको इरेज करेंगे और नया नेम इनपुट करेंगे एंड क्लिक ऑन ओके। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो दैट पर्टिकुलर टेबल लिब्रे ऑफिस बेस में आपकी सेव हो जाएगी। नाउ लेट मी शो यू द प्रैक्टिकल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग जो अभी अभी पढ़ा है आपने और हमने। लिब्रे ऑफिस बेस में चलते हैं। ठीक है, अब ये आ गए हैं हम लिब्रे ऑफिस बेस में। ठीक, अब हेयर टेबल्स पे हमने डेटाबेस पे क्लिक करा, ऑलरेडी मैंने टेबल क्रिएट करी थी लास्ट टाइम, आपको ध्यान होगा पीयूष। ठीक है, मैं डबल क्लिक करूंगा इस टेबल पे एंड ये टेबल जो है ओपन हो जाएगी आप लोगों के सामने। It's taking a bit time. Wait, it's already open. We don't have to. Now, here we are in the LibreOffice base interface. Databases पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियसली टेबल सेव कर दी थी, इसलिए यहाँ पे अपेयर हो रही है। ये जो दो स्टेप्स मैंने बताए थे ना, ये आपको लास्ट वाला जो वीडियो था और इसको साथ में ही करना है। टेबल बनानी है, प्राइमरी की सेट करना है और सेव करना है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे अगर ऑलरेडी आप टेबल बना चुके हैं। ठीक है, आपके सामने ये पर्टिकुलर अवेलेबल हो गई डिज़ाइन व्यू जो आपने बनाया था। ठीक है, फ्रॉम हेयर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, माउस क्लिक करा लेफ्ट, और ये पर्टिकुलर फील्ड आपको दिख रही होगी हाईलाइटेड हो रखी है और सिलेक्टेड है। अगर ये सिलेक्ट करनी है सेकंड नेम फील्ड तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लास सिलेक्ट करनी है तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको बेसिकली ध्यान ये रखना है पर्टिकुलर जो प्राइमरी की होगी वो यूनिक होनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट आईडी है, जो एसआर नंबर है आपका यूनिक है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहीं पे अपने माउस को प्लेस करते हुए राइट क्लिक करूँगा, मेन्यू अपेयर हो गया, सबसे लास्ट में है प्राइमरी की। आई एम गोइंग टू सिलेक्ट प्राइमरी की। अब this particular field, sorry, has been declared as a primary key in your table. अब ये आपकी टेबल में एज अ प्राइमरी की एक्ट करेगी। ठीक है, अगर आपको चेंज करना है प्राइमरी की, अगेन क्या करेंगे, आप कोई भी पर्टिकुलर हेड को सिलेक्ट कर लीजिए, फील्ड को,
राइट क्लिक करिए, सिलेक्ट करिए प्राइमरी की, और वहां से की का जो इमेज बना हुआ आ रहा है यहाँ पे, वो वहां से डिसअपेयर होके नेक्स्ट फील्ड पे आ जाएगा, जिसको आप सेट करोगे एज अ प्राइमरी की। ये हो गया हमारा प्राइमरी की, समझ में आ गया। अब सेव कैसे करना है? आर यू एबल टू सी द बटन सेव? दिस इज नोन एज सेव बटन। व्हेन यू वांट टू सेव इट, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, क्लिक ओवर देयर, ठीक है। आपके सामने सेव एज डायलॉग्स बॉक्स अपेयर हो गया, ठीक। अब आप इसका नेम दे देंगे, वट एवर नेम यू वॉन्ट इट टू बी, जैसे स्टूडेंट्स डेटा, ओके। नाउ ओके, नाउ योर टेबल हैज बीन सेव्ड। क्लोज करा, ये देखिए आपका स्टूडेंट डेटा नेम से टेबल सेव हो गई है। डबल क्लिक करेंगे ओपन करने के लिए, आपके सामने टेबल अपेयर हो गई। अब आप इसमें डेटा एंटर कर सकते हैं जो आप चाहते हैं इनपुट करना है इस टेबल में, ओके। नाउ कमिंग बैक टू अवर स्लाइड सेक्शन, this is going to be the topic which we are going to learn today. In the next video, we would be understanding the field properties, about the field properties, okay, and many more things, setting the field length properties, and ending of our chapter. We will also be learning how to add records to the table, saving and closing the table. Okay, till then, stay at your home and stay safe. Please go to the video, as the things which I am going to teach, which I am teaching you right now, would not be repeated in the class. It only would be revised. Okay, revision होगा इन चीज़ों का, repeat नहीं की जाएगी. Thank you and have a nice day.